The Prime Minister is going to visit Manipur, Mizoram, Assam. He's also going to be visiting West Bengal and Bihar. So 5 states from 13th to 15th September. The Prime Minister is going to unveil 8,500 crore rupees projects in Manipur and projects worth 71,000 crore rupees across 5 states. The Prime Minister is also going to launch National Makhana Board in Bihar. New terminal of Purnia Airport will be inaugurated by the Prime Minister. The Prime Minister is all set to unveil 36,000 crore development projects in Purnia and launch projects worth 9,000 crore in Mizoram. He's going to inaugurate the Bairabi-Sairang rail line in Mizoram. Prime Minister is going to launch 18,350 crore rupees projects in the state of Assam. Let's go across to Mohit, getting us more details. The Prime Minister is set to visit 5 states. It also includes Manipur, and projects worth thousands of crores to be unveiled and inaugurated by the Prime Minister. Mohit. Well, yes, in fact, Prime Minister Narendra Modi from 13 to 15 would be visiting various states, and he will be inaugurating and laying foundation of projects worth rupees 71,850 crores. Now, PM will also launch the National Makhana Board in Bihar. Remember, Bihar is the largest makhana producing state in the country, so that visit will be very, very important. He will be going to Purnia. Various announcements would be made, and we have to wait and watch what exactly PM has to say from the soil of Bihar on the Gali politics. Now, PM will also be going to various northeastern states, Mizoram, Assam and Manipur. But Swati, Prime Minister Narendra Modi's Manipur trip would be the first visit of Prime Minister Narendra Modi post the violence rocked Manipur, and we see that how the situation sometimes again get volatile in Manipur, given the fact that how there have been continuous protests, continuous violence since 2023. Now, this will be the first visit of the Prime Minister in Manipur. Prime Minister would be first going to Churachandpur. That is the one of the worst affected violence-affected places in Manipur, where many people have been killed, many have been displaced. So the Prime Minister over there will be laying foundation and launching various projects over there, and he will also be meeting the persons from AP and Kuki community who have been displaced due to the violence. Now, post that, Prime Minister will be going to Imphal, where he'll be addressing a public gathering. He will be addressing a gathering, and he will also be laying foundation and inaugurating various projects. So Prime Minister Narendra Modi's Manipur visit is also very, very important. This will be his first visit post the violence that broke out in Manipur. And we know for a fact that how opposition has been attacking Swati Prime Minister Narendra Modi, that Prime Minister has time to go on foreign trips. There's a lot of politics happening as well on the issue. Mohit, stay on with us. Now, the Prime Minister is going to be inaugurating Mizoram's first railway line, the Bairabi-Sairang corridor. We have a ground report from there. मिजोरम राज्य न ही केवल प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिजोरम राज्य अगर बात करें 2 देशों के बॉर्डर से कनेक्ट होता है, बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहाँ से आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है, यहाँ से ट्रेन की सीधी सुविधा शुरू होने जा रही है। यानी देश की राजधानी दिल्ली से अब आइजोल सफर करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है सायरंग रेलवे स्टेशन पर, और यहीं से अगर बात करें तो बैराबी तक 51 किलोमीटर जो रेल लाइन की सुविधा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात मिजोरम राज्य को देंगे। अब आने वाले समय में यहाँ से जो लोग सफर करना चाहते हैं देश के किसी भी कोने में, उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा रेलवे जो बुनियादी ढांचे का सीमावर्ती इलाके में पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सायरंग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, और आपको बताते चले कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेन की शुरुआत होगी, जो किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, व्यापारी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। जो लोग बाहर बिजनेस करना जाना चाहते हैं, युवा वर्ग अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, बैराबी-सायरंग जो रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, उसमें करीब 45 टनल है, 143 ब्रिजेस है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुतुब मीनार से भी करीब ऊंचा जो तैयार हुआ है, उसके बारे में अगर बात करें तो कभी 42 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो ब्रिज नंबर 144 बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही
सुनहरा पल होगा, ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मिजोरम में रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेन को नहीं देखा था, ट्रेन में वो नहीं बैठे थे। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा पल होगा कि जब लोग ट्रेन से सफर कर पाएंगे देश के किसी भी कोने में। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ भावना किशोर, टाइम्स फॉर भारत के लिए। भारतीय रेल ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल को देश के रेल नक्शे से जोड़कर इतिहास रच दिया है। बैराबी से सायरंग तक करीब 51 किलोमीटर की रेल लाइन की शुरुआत हो रही है। आप मेरे पीछे ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये करीब कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस रेल ब्रिज को ब्रिज नंबर 144 कहा जा रहा है और 51 किलोमीटर जो रेल लाइन बैराबी से सायरंग तक तैयार हुआ है, उसमें करीब 8,071 करोड़ की लागत लगी है, जिसमें करीब 55 बड़े पुल आते हैं, 48 सुरंगें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी मुश्किलों के बाद कितना वक्त लगा है। इंजीनियरिंग मार्वल का कमाल है। अब जाकर ये जो रेल लाइन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से ट्रेन होकर गुजरेगी। इसके अलावा अगर बात करें, इस पुल को आप देखिए, क्योंकि ये भूकंपीय सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। इस पुल में कुल 6 स्पैन है। प्रत्येक स्पैन के गार्ड्स की जो डिजाइन है वो अलग अलग तरीके से की गई है और ये करीब 114 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से 42 मीटर ये अधिक है। इसके अलावा अगर बात करें, जब ये रेल लाइन की शुरुआत होगी तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा मिजोरम में, लेकिन इसके अलावा किसान, बुनकर, व्यापारियों के लिए देश भर से अपने सामान को भेजना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही इससे बहुत तेज और सुगम होगी। इसके अलावा सेना की अगर मूवमेंट की बात करें तो पहले सड़क माध्यम से बहुत वक्त लगता था, लॉजिस्टिक को लाने ले जाने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन अब रेलवे के आ जाने से, रेल लाइन की शुरुआत हो जाने से अब बहुत सी चीजों में नया बदलाव देखने को मिलेगा। विकास की नई राह जो है वो देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ भावना किशोर, टाइम्स फॉर भारत।